Hello student, so welcome you all Explore Learning Center. So today we are going to solve some important or simple numericals based on the what electric field, okay, by using the principle of superposition. Already I told you these numericals are exactly similar to that of the what Coulomb's law, that triangle formation, square formation in between the two charges, how the F1 F2, okay, and already discussed if the two charges are there and then in between them, okay, so this is what the condition you can say. Already it is explained in the last lecture, I think, okay. So these are what some situations in the triangle form. If the two positive charges are there, what is the electric field at this point, in this point, okay. If the vectors are pointing opposite direction, you have to minus. If the vectors are pointing in the same direction, you have to add, okay. So only remember this equation, and this is what the resultant equation, okay. So now once you try to solve the numericals, you will come to know, okay. So here is the first numerical. Calculate the magnitude of the electric field which can just suspend a deuteron of mass. This is what the mass of the deuteron, okay. So I will tell you what is a deuteron, and freely in the air, okay. So deuteron is actually the isotopes of hydrogen which consist one proton and one neutron. It means what? It also consists one electron, okay, because number of electrons and the number of protons are same, okay. So what happens actually, this situation is what, suppose this is a deuteron atom, okay. So in this deuteron there is what, one proton and one neutron, and around that one electron is revolving. So now initially it is neutral. Now when you remove this electron, what is left? Only one proton, okay. So this is actually positively charged because the electron is removed, okay. So deuteron is positively charged. Now what happens? It is suspended freely in the air, okay. It is suspended freely in the air by the electric field, some electric field, and that electric field you have to calculate, okay. So the picture is like, suppose this is the negative plate, okay, negatively charged plate, and this is what the positively charged plate, okay. So this is positively charged plate, okay. So what is the electric field direction? Electric field direction will be upward direction. Electric field will be in the upward direction like this, okay. So now this is the electric field you have to calculate, okay. So now in this electric field, that deuteron is suspended, okay, which consists one proton and one neutron, okay. So now it is suspended in this electric field. That means what? Deuteron is positive and this is also positive, so positive repel, but at the same time deuteron is a mass particle, okay. So due to the gravity it is pulling downward, so I will consider this as a proton, this as a deuteron, okay, this as a deuteron. तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रहा है mg, और उसी टाइम पे ये पॉजिटिव, क्योंकि ड्यूट्रॉन भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसके रिपेल कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, और वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अपवर्ड लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग रहा है? ये अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ओके। सो इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है कि F इजिकल टू वॉट, Q इंटू ई, और Q क्या है? ड्यूट्रॉन है, चार्ज है, और E क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, जब ये दोनों फोर्स F और ये वाला जब दोनों इक्वल होते हैं तब ये सस्पेंड होता है, मतलब बीच में ही रहता है, ना ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ओके। तो इट इज फ्रीली सस्पेंडेड, ओके। सो आई विल राइट इट डाउन हियर, द ड्यूट्रॉन is suspended in air between electric field if the gravity, or you can say weight, क्योंकि ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं? वेट, ओके। वेट क्या होता है? mg is balanced by electric force, it is balanced by electric force. So I will say electric force on deuteron must be equal to what? Weight of a deuteron. So electric force is Q into E is equal to what? Weight is equal to what? M into G, correct, okay. So now you can see here, okay. So
deuteron, okay, one proton plus one neutron, okay, so it has you can say mass is given and the charge is given, correct. Okay, now we need to find out E, therefore E is equal to what, m into g divided by q, correct. Okay, therefore E is equal to what, okay, mass of the what, neutron, that is 3.2 10 to the power of minus 27, okay, and then multiply by g is 9.8 and q is 1.6 10 to the power of minus 19 coulomb. Why q 1.6? Because only one proton is there, neutron is chargeless particle, so whatever the charge is on the deuteron is nothing but the charge of this proton itself. Okay, so when you solve this, E is equal to what, okay, so 3.2 multiplied by 9.8, okay, so I will just do this 3.2 multiplied by 9.8, okay, so you will get 31.36 into 10 to the power of minus 27 whole divided by 1.6 10 to the power of minus 19, okay, so 31.36 divided by 1.6, you will get 19.6. So E is equal to what, 19.6 into 10 to the power of minus 8 Newton per coulomb, because electric field has a unit Newton per coulomb. Okay, so this is what the electric field. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो ये ड्यूट्रॉन यहीं पे सस्पेंडेड रहेगा, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, नाउ वी विल सी द सेकंड वन. Okay, so 2 point charges 2 microcoulomb and 8 microcoulomb are placed at 12 centimeter apart. Find the position of the point where the electric field intensity will be 0. Okay, so now here is the point charges, 2 point charges. This is a positive, okay, and this is also positive, and this charge is what, 2 microcoulomb, and this charge is what, 8 microcoulomb. So I will mention here this is q1 and this is q2. Okay, now what is the separation between them? The separation between them is 12 centimeter. Okay, so now this is the line joining, मतलब ये imaginary line है दो जो इन दोनों चार्जेस को क्या करती है, जोड़ती है. ठीक है, तो आपको ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है इन दोनों चार्जेस के बीच में कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होती है, जब इसके वजह से कहीं भी इसके वजह से उसी पॉइंट पे अगर दोनों इक्वल है बट अपोजिट है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी. अच्छा, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं पे होगा. तो E1 E2 यहाँ पे दोनों ऐड होके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर बिकम्स जीरो इस चार्ज की इस तरफ या फिर इस चार्ज की इस तरफ. ठीक है, अगर दोनों सिमिलर है, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन दोनों के बीच में कहाँ पे होगी, इन दोनों चार्जेस के कहीं तो बीच में होगी. सो आई विल कंसिडर दैट पॉइंट समवेयर हियर. आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट पे, हाँ नहीं, ठीक है, मतलब 6 सेंटीमीटर यहाँ से 6 सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं, आप वो पॉइंट कहीं से भी कंसिडर कर लो. ठीक है, सो नाउ आई विल कंसिडर दिस पॉइंट. ओके, ये P पॉइंट है. ठीक है, ये जो P पॉइंट है, और ये जो P पॉइंट है ये इस चार्ज से हम लोग मान लें कि x डिस्टेंस पे. ठीक है, हाँ, ये चार्ज से अगर x डिस्टेंस पे है, इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे होगा. ठीक है, ये 12 माइनस एक्स कर दो, करेक्ट. सो 12 माइनस एक्स, मतलब ये जो पॉइंट है इस चार्ज से इतने डिस्टेंस पे है और ये जो पॉइंट है इस चार्ज से इतने डिस्टेंस पे है, करेक्ट. अच्छा, यहाँ पे हमने क्या माना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो है, मान लिया है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगी, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगी. सो इसको हम E1 मान लेंगे, और ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगी, ये भी E2 है. ओके, सो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज जीरो, व्हेन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. ठीक है, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. ओके, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा. जब ये दोनों आप माइनस करोगे तो उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, हाँ, अब हमें पता नहीं कि E1 और E2 इसमें से कौन सा बड़ा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यू कैन मेक इट व्हाट, ठीक है. अच्छा, ये ऐसा है तो ये इसको इस तरफ लेंगे तो E1 इज इक्वल टू व्हाट, E2 होगा. E1 इज इक्वल टू व्हाट, E2. ओके, so now E1 क्या है, that is electric field due to first charge, so it becomes 1/4
4 pi epsilon naught. Okay, first charge 2 into 10 to the power of minus 6, 2 microcoulomb. So what is the distance between them? R square. Okay, that is x square. Okay, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, इज इक्वल टू व्हाट, E2 that is 1 upon 4 pi epsilon naught 8 into 10 to the power of minus 6. Okay, and divided by 12 minus x the whole square. Correct. Okay, so 1 upon 4 pi epsilon naught 10 to the power of minus 6, 1 upon 4 pi epsilon naught 10 to the power of minus 6 will cancel out. Okay, so what is left? 2 upon x square is equal to what, 8 upon 12 minus x the whole square. ओके हाँ, अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको ये भी कैंसिल कर दो, 2 4 ज़ा 8 कैंसिल आउट. सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4 डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर. करेक्ट. ओके, ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो और ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो. सो 12 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर. करेक्ट. ओके, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो स्क्वायर रूट लिया तो क्या होगा यहाँ पे 12 माइनस एक्स. ओके, इज इक्वल टू व्हाट, 4x. ओके, सो okay, so you will get the 5x here. So 12 minus x, 12 minus x the whole square. Okay, 4x, sorry 2x square, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालो तो क्या होगा, 4 का 2 होगा और x स्क्वायर का x होगा. ठीक है, नाउ यू कैन जस्ट टेक दिस टू दिस साइड. सो 12 इज इक्वल टू व्हाट, ये माइनस एक्स उस तरफ जाएगा, प्लस एक्स एंड 2x, यू विल गेट 3x. देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, 12 डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, 4 सेंटीमीटर. x इज इक्वल टू व्हाट, 4 सेंटीमीटर. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे, P पॉइंट पे ज़ीरो होगा अगर वो P पॉइंट इस चार्ज से 4 सेंटीमीटर दूर है. ठीक है, अगर इस चार्ज से 4 सेंटीमीटर दूर है तो इस चार्ज से कितना होगा, दैट इज 12 माइनस 4, 8 सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब यहाँ से 8 सेंटीमीटर पे जीरो होगा और यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा. ओके, सो दिस इज द सेकेंड वन. ओके, नेक्स्ट दिस इज द थर्ड वन. ओके, सिमिलरली 2 पॉइंट चार्जेस, ओके, QA एंड QB, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है लेकिन इक्वल है, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट. ओके, इन अ वैक्यूम. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन जॉइनिंग द AB ऑफ द 2 चार्जेस इफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड. ठीक है, आप ठीक तरह से पढ़ो, इसको समझ में आएगा. ठीक है, तो क्या है, एक 2 चार्जेस है. ओके, तो ये एक चार्ज है QA, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकूलम. ओके, और सिमिलरली एक 20 सेंटीमीटर पे QB चार्ज है, दैट इज -3 माइक्रोकूलम. ओके, एंड बोथ आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर. ओके, नाउ व्हाट इज द आस्क क्वेश्चन, फर्स्ट वन ए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट. अब मिड पॉइंट बोला है, मिड पॉइंट मतलब यहाँ से ये पॉइंट यहाँ मान लो ये. ठीक है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, मिड पॉइंट मतलब यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर और यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मिड पॉइंट बोला है तो 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके, सो QA QB. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द वेक्टर्स. ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, दैट इज आई विल से EA, क्योंकि चार्ज A की वजह से EA. ओके, अब इसकी वजह से चार्ज B नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा. सो यू विल गेट द व्हाट, दिस इज EB. ओके, अच्छा, इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, दैट इज नथिंग बट द बोथ द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. सो EA EB, तो अगर दो वेक्टर्स एम ई डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो हम उसको ऐड करते हैं. ठीक है, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द व्हाट, EA प्लस EB. सो EA, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A चार्ज. ठीक है, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, किसकी वजह से, इस QA की वजह से. सो 3 10 to the power of -6 होल डिवाइड बाय 10 into 10 to the power of -2 दी होल स्क्वायर. क्यों, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाना है, तो क्या होगा, 1/10 to the power of -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस. ओके, व्हाट इज EB. ओके, सो EB, नाउ ओके, सो
इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ड्यू टू द व्हाट, ओके सो वी मतलब हमें वहाँ पे क्या लेने है, सिंबल लेना नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उनको आप ऐड ही कर सकते हो, करेक्ट, ओके। सो यू हैव टू जस्ट ऐड देम, ओके, ये ई बी, करेक्ट, ओके। आप सिर्फ ऐड कर सकते हो क्योंकि सिंबल क्या बता रहा है, सिर्फ निगेटिव है, ठीक है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁻⁶, ओके, और 10 इंटू 10⁻⁻2 दी होल स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, तो ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, ठीक। सो नाउ नेक्स्ट, सो ई इज इक्वल टू व्हाट, ओके। अब दोनों सेम ही है, दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टू टाइम्स और दोनों सेम ही है ना, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप चाहे तो सेपरेटली कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों भी किया है, मतलब a + a 2a हो जाएगा वैसे ही, ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम ही है, इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ -2 दी होल स्क्वायर, करेक्ट, ओके, -2 दी होल स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट में। सो ई इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू, ओके, सो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, ये प्लस है यहाँ, ऐसा नहीं, क्योंकि ये देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम ही है, तो a + a क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a, करेक्ट, ओके। तो और ये क्या है, ये, ओके, होल डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, ओके, देयरफॉर ई इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू, ओके, सो 9 3s are 27 इंटू 10⁻+9 -6, you will get +3 and whole divided by 100 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके। सो अब फाइनल इक्वेशन जो होगा ई इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू, ओके, या फिर इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 2 50s are, ओके, कैंसल आउट, सो 27 इंटू 10⁻+3 and whole divided by 50 into 10⁻⁻⁴, okay. So now 27 divided by, okay, so you will get 27 divided by 50, you will get 0.54, okay. So E is equal to what, 0.54 into 10⁻+3 इंटू 10⁻+4, क्यों, ये ऊपर जाएगा +4 होगा, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, 0.54 इंटू 10⁻+7, ओके। लेकिन हमें मेक इट 5 ये तो 54 में रख सकते हो, या फिर 5 पॉइंट कर दो इसको, तो ये डेसिमल पॉइंट है, तो इस तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और इस तरफ जाता है तो बढ़ता है, ठीक है। सो 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ओके। सो दिस इज व्हाट द थिंग्स। नाउ अब बी का जो आंसर है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 10⁻⁻⁻, इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, मतलब यहाँ पे अगर रखा है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हमें फोर्स पता है, F इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू ई, ठीक है, और Q मतलब वो टेस्ट चार्ज जो रख रहा है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। सो Q0 1.5 10⁻⁻⁹, ओके, क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाला है ना, सो F इज इक्वल टू व्हाट, Q0 इंटू ई, Q इंटू ई, ओके। सो दिस व्हाट द इक्वेशन, ठीक है, वो इक्वेशन कहाँ से आया, बिकॉज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, F डिवाइडेड बाय Q, सो F इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू ई। अगर आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, कौन सा चार्ज वहाँ पे रख रहे हैं ये पता है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। सो F इज इक्वल टू व्हाट, ओके, सो Q0 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5.4 10⁻⁶, ओके। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5.4, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5.4, you will get 8.1, okay. So into 10⁻⁻5 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ओके। समझ में आ गया, ओके। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ओके, और इम्पॉर्टेंट है बहुत, ओके। सो स्टार्ट, ओके। सो रीड इट प्रॉपरली कि क्या बोला है, ठीक है। बाकी सब ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप्स वगैरह एक्सपेरिमेंट का नाम है, उससे कंफ्यूज मत हो, ठीक है। क्या दिया है बस उतना ही पढ़ो आप, ठीक है। सो एन ऑयल ड्रॉप 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक ऑयल ड्रॉप है, ये क्या है, ऑयल ड्रॉप है,
एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 12 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ओके। अगर इसके पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, करेक्ट, ओके। हेल्ड स्टेशनरी अंडर द कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है, इन मिलिकन ड्रॉप ऑयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट का नाम है। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, इस ऑयल की डेंसिटी दिया है, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप, तो इस ऑयल ड्रॉप का आपको रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस, ठीक है। ये गिवन है, जी दिया है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, ओके। सो इसका मतलब क्या है, ये ऑयल ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड किया जाए, ठीक है, सस्पेंड मतलब कैसे होना चाहिए, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। सो अब ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सस्पेंडेड है, ये नेगेटिवली चार्ज अगर सस्पेंडेड है तो यहाँ पे कहीं तो नेगेटिव होना चाहिए ना, नेगेटिव प्लेट होना चाहिए, और यहाँ पे कहीं तो पॉजिटिवली होना चाहिए, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज सस्पेंडेड है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव था, पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा इसको, ठीक है। सिमिलरली इसके पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप है, तो नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल करेगा, मतलब ऊपर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो mg है और ये जो फोर्स q इंटू ई है, ये दोनों फोर्स इक्वल है, इसलिए ये ऑयल ड्रॉप सस्पेंडेड है, तब जाके आपको ये R निकालना है, ठीक है। हाँ, लेकिन पहले जो गिवन है वो लिखो यहाँ पे, ओके। सो चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, Q इज इक्वल टू व्हाट, N इंटू ई, सो Q इज इक्वल टू व्हाट, N इज 12 इंटू ई इज 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19, ओके। तो आप ऐसे ही रख दो, उसको बाद में हम कैलकुलेशन में ले लेंगे डायरेक्टली, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज़ 2.55 10 टू द पावर ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम, ओके। सो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। जी इज़ गिवन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 ले लो या फिर 8 ले लो, डजेंट मैटर, ओके। और डेंसिटी ऑफ द ऑयल दिया है 1.26, ओके, ग्राम। अब देखो यहाँ पे सारे वैल्यूज़ मीटर पर सेकेंड या फिर यूनिट ऐसा यूनिट में है, लेकिन ये डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, हमें क्या करना है उसको केजी पर मीटर क्यूब में करना है। तो ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 टू द पावर ऑफ -3 kg होल डिवाइडेड बाय पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर दी होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 1.26 10 टू द पावर ऑफ -3 और ये डिवाइडेड बाय है 10 टू द पावर ऑफ -6 मीटर क्यूब, ओके। सो डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, 1.26 10 टू द पावर ऑफ -3 और ये -6 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर ऑफ +6 और ये पर मीटर क्यूब। सो फाइनली डेंसिटी इज 1.26 10 टू द पावर ऑफ 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये कन्वर्जन थोड़ा सा याद रखो, ओके। सो नाउ ओके, अच्छा तो लेकिन ये अच्छा अब Q पता है, ठीक है, ये Q है, ठीक है। E भी पता है हमें, E भी पता है, लेकिन G पता है, लेकिन M पता नहीं है। इस ऑयल ड्रॉप का मास दिया नहीं है, लेकिन उसकी डेंसिटी दी है, ठीक है। लेकिन हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, तो मास क्या हुआ फिर, मास इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, करेक्ट, ओके। हाँ, अब वॉल्यूम भी पता नहीं है, लेकिन ये स्पीयर है ना, ठीक है। तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्पीयर का वॉल्यूम का इक्वेशन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो बस वही लेना है हमें। सो मास इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। सो टोटली मास कितना होगा, 4/3 पाई रो आर क्यूब। सो ये m की वैल्यू आपको यहाँ पे प्लेस करनी है, ठीक है। सो अब ये जो ड्रॉप है ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, ये जो QE जितना है उतना ही mg है, ठीक है। सो आई विल राइट इट डाउन, अंडर स्टेबल और स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी कंडीशन,
कि वो ऑयल ड्रॉप रुका क्यों है अंडर द स्टेशनरी कंडीशन, QE इज इक्वल टू व्हाट, mg, QE इज इक्वल टू व्हाट, mg। ओके, अब ये Q और ये E, m कितना है, दैट इज 4/3 पाई रो r क्यूब मल्टीप्लाई बाय g। ओके, हाँ हमें क्या चाहिए, r क्यूब चाहिए, सो r क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, सो ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3QE डिवाइडेड बाय, ओके, और ये 4 पाई रो और g नीचे, 4 पाई रो एंड g नीचे, ठीक है। सो 3Q की वैल्यू क्या है, दैट इज 12 इंटू 1.6 10 to the power of minus 19, okay, multiply by electric field 2.55 10 to the power of how much it is, electric field 4, okay, whole divided by 4 into 3.14 into density is 1.26 10 to the power of 3 into G is 9.8, G is how much, 9.8, okay। तो एक बार कंफर्म कर लो ठीक तरह से, ठीक है। ये आर क्यूब निकालना है, तो आर क्यूब निकालना है तो ये 3 इस तरफ गया, 4 पाई रो जी, 4 पाई रो जी, 3Q इतना है, ठीक है। सो आर क्यूब अब 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2.55, ठीक है। कर दो सारा मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2.55, ओके। So you will get 146.88 into 10 to the power of minus 19 and plus you will get minus 15, okay, and whole divided by, अब ये multiply कर दो, that is 4 into 3.14 into 1.26 into 9.81, okay, 81 ले लो या फिर 8 ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 155.24 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ओके, दिस इज व्हाट 10 टू द पावर ऑफ, ओके, 10 टू द पावर ऑफ हाउ मच, 3 ओनली, 10 टू द पावर ऑफ 3, करेक्ट, ओके। सो नाउ, ओके, अब आर क्यूब, अब इसको सॉल्व कर दो पहले, ठीक है। सो 146.88 whole divided by 155.24, you will get 0.946 10 to the power of minus 15 into 10 to the power of minus 3, okay, 10 to the power of minus 3, okay. So you will get 0.946 into 10 to the power of minus 18, करेक्ट, ओके। सो आर क्यूब, हमें क्यूब रूट लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक 3 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, नहीं 3 0 नहीं, ओके। सो इसका क्यूब रूट लेना है तो ऐसे करेंगे, ओके। सो वी विल डू वन थिंग, इस डेसिमल पॉइंट को मैं 3 डिजिट इस तरफ शिफ्ट करूँगा, तो 1 2 3, करेक्ट, ओके। So if I shift this 3 digit here, this number will be increased by 3, okay. So 946 into 10 to the power of minus 21 होगा, minus 21, okay. अब R is equal to what, cube root of 946 multiplied by 10 to the power of minus 21, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 946 into 10 to the power of minus 21 1/3, करेक्ट, ओके, 1/3। सो R इज इक्वल टू व्हाट, ओके। सो 946, अच्छा मतलब क्या है, जैसे 1000 है, ठीक है। 1000 कौन सा नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 आता है, दैट इज नथिंग बट व्हाट 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, दैट इज 1000, ठीक है। सिमिलरली मतलब 946 नियर बाय 1000 है, सो विच नंबर यू शुड मल्टीप्लाई टू गेट द व्हाट, नियर बाय 946, ओके। एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन नियर बाय 946 मिलना चाहिए। सो आई विल मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ओके। सो ऑलमोस्ट 941 कितना आता है, ये देखो अब कितना आ रहा है, 9.8 मल्टीप्लाई करने के बाद 941 आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो क्यूब रूट है 9.8 है, ठीक है, राउंड फिगर, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ओके। 10 टू द पावर ऑफ, अच्छा ये 1/3 है और ये -27 है, तो ऐसा रहा तो क्या होता है, ये इसको मल्टीप्लाई होता है, सो 3 7s कट, सो -7, ठीक है, 3 7s
21, so minus 7 as it is. Okay, so r is equal to what? Okay, so I have to make this as 9.8 into 10 to the power of minus 4 into 10 to the power of minus 3. इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा ऐसे, क्योंकि मिलीमीटर में लिखना है मुझे. व्हाट द आंसर शुड बी इन मिलीमीटर. ओके, सो फॉर दैट पर्पज आई हैव टू मेक इट. ओके, सो आर इज इक्वल टू व्हाट? 9.4 into 10 to the power of minus 4 mm. ओके, बिकॉज ये मीटर में हो गया, लेकिन 10 to the power of minus 3 क्या होता है? मिलीमीटर. ओके, सो इसलिए बेसिक बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, जो भी है आपका बेसिक बहुत ही ज़रूरी होता है. ठीक है, तो ये है आपका न्यूमेरिकल सेगमेंट्स. ओके, अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में समझ में आएगा. आप चाहे तो वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपके ऊपर. ठीक है, फिजिक्स है, हलवा नहीं है कि एक बार में हो गया. ठीक है, अब जितनी बार समझ में नहीं आता उतनी बार पीछे पढ़ो इसके. ठीक है, आपको क्या और चाहिए कि सब कुछ ईजिली चाहिए और फास्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता. ठीक है, जितना आप देखोगे उतना ही पढ़ोगे ठीक से. ठीक है, सो बस ये न्यूमेरिकल से और भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट थिंग्स. ओके, नाउ okay, so we will stop here. Okay, so whatever the next numericals are there, we will try to solve in the next video. Okay, so till then see you in the next tomorrow's lecture. Okay, till then, bye and take care. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.